हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमारा ऑनलाइन लेक्चर का जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल सिग्नल रियल एंड complex values. So your exponential signal may be a real value signal or maybe a complex value signal in which we have a real as well as a complex or imaginary terms. First line in which we have x of t is equals to a of a naught e power s of t, where a naught is the amplitude of exponential signal, e power st is an exponential signal. So first we assume that n naught is equals to 1. So the x of t, the original signal, then becomes e power s of t. This is the equation number 1, in which s is the complex number which is equals to the sigma plus j omega. So sigma first term is considered as a real quantity, whereas j omega is an imaginary term of this complex signal. So the x of t becomes e power st. So if we write s is equals to sigma plus j omega, we can write it as x of t is equals to e power sigma plus j omega of t. So now we already discussed about the Euler's formula, which is equals to e power jx, which is equals to divided into two terms, a real term and an imaginary term, is equals to the cosine of x plus j sine of x, in which cos is a real value signal and sine of x is a imaginary value signal. So x of t हम लोग जो है वो उसको जब ब्रेकआउट करेंगे तो इसमें आपकी रियल टर्म भी आएगी जो कि ई पावर सिग्मा टी, बिकॉज सिग्मा जो है वो हमारे पास रियल क्वांटिटी है और जे ओमेगा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी क्वांटिटी है. So these both terms are multiplied together because there is a summation sign of exponential signal. So फिर हम इसको और ज़्यादा इसको हम जो है वो डिवाइड करेंगे. रियल वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी, जो जे ओमेगा टी है जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको अकॉर्डिंग टू द आइलर्स फार्मूला हम इसको हम ब्रेकआउट करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, तो हमारा जो है वो सिग्नल है उसको हम रियल टर्म एज वेल एज इमेजिनरी टर्म में डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा. देन स्लाइड, ठीक है, जो हमने प्रीवियस सिग्नल था एक्स ऑफ टी जिसको हम ब्रेक किया इन रियल क्वांटिटी एज वेल एज इन कॉम्प्लेक्स टर्म्स में, जिसमें आपकी रियल वैल्यू भी आ गई और इमेजिनरी वैल्यू भी आ गई. अब हमारे पास ये जो ओमेगा टी है, ये सिग्नल जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे. और ओमेगा के ऑब्वियसली हमारे पास दो केसेस हैं, either omega is equals to 0 or either omega is not equals to 0. So we consider first the case number 1 in which we consider as omega is equals to 0. So we put omega is equals to 0 in above equation and we get x of t is equals to e raised to e power sigma t, जो कि हमारे पास रियल टर्म है. और जब हम जो cos of omega t and k of sin omega t, इसमें हम omega की वैल्यू पुट करेंगे 0. So as we already know that cos of omega t या cos of 0 is equals to 1 and sin of 0 is equals to 0. So हमारे पास जो टर्म बचेगी रिमेनिंग, it will be equals to x of t is equals to e power sigma t, जो कि हमारे पास रियल क्वांटिटी है. और इमेजिनरी जो है वो 0 हो गए, तो दैट मीन्स इट विल remove from the equation. So in this case x of t is a real valued signal. So x of t is equals to real exponential signal, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिग्मा है आपकी यहाँ पे वो क्या है, आपकी रियल टर्म है, और जो जे ओमेगा थी, ओमेगा इज योर व्हाट इमेजिनरी वैल्यू. तो इमेजिनरी वैल्यू खत्म हो गई, हमारे पास क्या आ रहा, जो भी हमारे पास सिग्नल है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, वो रियल वैल्यू एक्सपोनेंशियल सिग्नल है. सो फिर हम एक्स ऑफ टी हमारे पास जो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल आया है इसमें हमारे पास क्या है, जो रियल वैल्यू है, आइदर हम अब इसमें भी हमारे दो केसेस यूज होंगे. सो अगेन डिपेंड ऑन द सिग्मा, वी अगेन हैव टू केसेस एंड दीज आर case number 1 when sigma is greater than 0 and case number 2 when sigma is less than
0. So अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 होगा तो that means sigma has a positive value, and if sigma is less than 0 that means sigma has a negative value terms. So अब हम यहाँ पे किस तरीके से हम एक मैटलैब कोड जनरेट करेंगे जिसमें हमारे पास इक्वेशन तो वी हैव ऑलरेडी हैव एक्स ऑफ टी इजिकल्स टू ई पावर सिग्मा टी. अब हम देखेंगे कि हमारे जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, जो कि हमारे पास क्या है रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, तो वो सिग्नल जो है वो उसकी जब हम मैटलैब कोड करेंगे तो उसको हम देखेंगे कि वो either they are increasing order either they are decreasing order. हमें पता तो है एक्सपोनेंशियल सिग्नल किस तरीके से आता है, लेकिन either increasing order में है if you approaching time to the infinite, or either increasing or decreasing if we approaches time as an infinity. सो दोनों का ही केसेस के हमने यहाँ पे मैटलैब कोड लिखे हैं और यहाँ पे हमने टाइम वैल्यू दे दी है फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट और टू पॉजिटिव इन्फिनाइट वैल्यूज, जो कि हमने कंसिडर की है नेगेटिव एक्सिस पे -2 एंड पॉजिटिव टू माइनस फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम -2 एंड गोइंग टूवर्ड +2. यहाँ पे हमने सिग्मा की जो वैल्यू कंसिडर की है हमारे पास ऑप्शन क्या है केस नंबर 1 में सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, सो वी पुट सिग्मा always greater than equals to 0. So we put here sigma as 2. अगर हम कोई और वैल्यू पुट करेंगे, लेट सपोज कि हमें जो है वो सिग्मा वैल्यू पुट करनी है सिग्मा इज इक्वल्स टू 4, सो वी टेक द टाइम इंटरवल t इज इक्वल्स टू फ्रॉम -4 टू +4, और वी टेक -5 टू +5. हमारी जो सिग्मा की वैल्यू है विद इन द रेंज जो भी टाइम एक्सेस है उसके रेंज में हो. फिर हमारे पास जो x है सिग्नल, यहाँ पर x ऑफ t पुट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ x मेंशन कर रहे हैं और उसका जो कोड होगा एक्सपोनेंट पावर सिग्मा मल्टीप्लाई बाय t. हमने यहाँ पर डॉट स्पेसिफाई किया है क्योंकि t जो है वो आपकी एक वैल्यू नहीं है, वो आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है फ्रॉम -2 और जो बीच में इंटरवल है इसके 0.01 है, दैट मीन्स सो मैनी वैल्यूज बिटवीन -2 टू +2 वैल्यूज. तो यहाँ पे हम डॉट देंगे ताकि वो जो सिग्मा की 2 वैल्यू है वो हर एक टाइम वैल्यू से क्या हो मल्टीप्लाई हो. देन प्लॉट हम कर रहे हैं, प्लॉट फर्स्ट जो है वो हम इंडिपेंडेंट वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, देन डिपेंडेंट वैल्यू जो कि x है जो कि पूरा डिपेंड कर रहा है आपकी इस पे टाइम एक्सेस पे. फिर यहाँ पे r हमने मेंशन किया है, r से मुराद ये है कि हम जो प्लॉट चाहते हैं उसका जो कलर हो प्लॉट का वो किस कलर में हो, रेड में. फिर हम यहाँ पे जो लाइन विड्थ है प्लॉट की उसको भी हम चेंज कर रहे हैं और हम यहाँ पे दे रहे हैं लाइन विड्थ इज इक्वल्स टू 2.5. इसके अलावा आप कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आप उसकी विड्थ ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपनी जो प्लॉट है उसकी लाइन विड्थ कम भी कर सकते हैं. फिर हम यहाँ पे टाइटल देंगे जो कि है रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. फिर देन एक्स लेवल आपका क्या है टाइम एक्सेस, वाई लेवल आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपका फंक्शन है एक्स ऑफ टी. उसी तरीके से यहाँ पे केस 2 पे भी जो हमारा जो सिग्मा है वो लेस देन 0, दैट मीन सिग्मा हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू. तो यहाँ पे जो सिग्मा होगा वहाँ पे हमने सिग्मा कंसिडर किया है, यहाँ पे हम सिग्मा 1 कंसिडर कर रहे हैं दैट इज -2. वहाँ पे हमारे पास सिग्नल जो है वो एक्स ऑफ टी या एक्स था, यहाँ पे हमने उसको चेंज किया एक्स ऑफ 1. तो x1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ सिग्मा 2 जो कि क्या है माइनस वैल्यू है सिग्मा 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम एक्सेस. और यहाँ पे जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो t इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि सेम है दोनों में. और x1 क्या है वहाँ पे x था फॉर सिग्मा इज लेस देन ग्रेटर देन 0 और x1 क्या है फॉर सिग्मा लेस देन 0 हैविंग नेगेटिव वैल्यू. और यहाँ पे हमने जो कलर स्पेसिफाई किया है b से किया है दैट इज ब्लू, और लाइन विड्थ हमने सेम रखी है 2.5 एंड देन टाइटल इज obviously same, x level is time and y level is x of t. ठीक है, जब हम इसको प्लॉट करेंगे इन द मैटलैब में आपको इन द एंड ऑफ द लेक्चर ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इसको प्लॉट किया और फिर किस तरीके से हम उसको देखेंगे ऑन अ मैटलैब जो भी विंडो है एनवायरनमेंट है. ठीक है, फिर हमने जो भी प्रोग्राम है दोनों प्रोग्राम में आपको कोड लिखा है उस कोड के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्लॉट आ जाएगा. मैन केस 1 व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 एंड और सिग्मा हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू. तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम टाइम जो है वो बढ़ाएंगे तो हमारा जो सिग्नल है एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. और दूसरे केस में जब हमने नेगेटिव वैल्यू दी सिग्मा की और सिग्मा इज लेस देन 0 तो हम देख सकते हैं कि टाइम जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं हम तो जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो डिक्रीजिंग
वेव में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वेव. It start from highest value, and when time approaches to the infinite value, positive infinite, it approaching towards the it decreases its value when time approaches to the positive infinity. So हम ये कह सकते हैं कि जो sigma is greater than 0, when we put sigma is positive value in a real exponential signal, तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या है, राइजिंग सिग्नल है. और व्हेन सिग्मा इज लेस देन 0 और सिग्मा हैज अ नेगेटिव वैल्यू, द रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज डिक्लाइन सिग्नल. ठीक है. नेक्स्ट इज अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल था उसको हमने दोनों ही वेव्स को एक ही में प्लॉट में हमने इसको क्या किया है, देखा है. हम इसको देख रहे हैं जिसमें रेड कर्व जो है वो शो कर रही है आपकी इंक्रीजिंग राइजिंग, और जो ग्रीन है वो क्या कर रही है, डिकेइंग रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल. अब यहाँ पे हमने वो पॉइंट ली है जो कि दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे टाइम हमारा क्या है, 0 है. सो व्हेन टाइम अप्रोचिंग टुवर्ड्स द 0, द फंक्शन इज इक्वल्स टू the amplitude of the function is equals to 1, जो कि यहाँ पे दोनों ही 1 है आपके. जब हमारा सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सिग्मा लेस देन 0 है, उस वक्त जो है जब 0 टाइम ले रहे हैं तो दोनों ही इक्वल है किसके, 1 के. देन ये भी हमारे पास कोड है जिसमें हमने सब प्लॉट कमांड के थ्रू जो है, फर्स्ट जो है वो हमने नेगेटिव रियल वैल्यू एक्सपोनेंशियल सिग्नल को प्लॉट किया है, जो कि हमारे पास क्या है, डिकेइंग ऑर्डर है. और जो दूसरा है वो है हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, या हम कह सकते हैं व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन 0. जब हमने इसको प्लॉट किया है तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल आ रहा है. ओके. देन ओके. अब हमारे पास जो हमने केस फर्स्ट केस स्टडी किया उसमें क्या था, केस 1 व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास जो केस 2 है वो हम कंसीडर करेंगे व्हेन ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0. अब इन्हीं जो है वो ओमेगा इसी केस में जो है हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, व्हेन सिग्मा इज इक्वल टू 0, व्हेन सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, व्हेन सिग्मा इज लेस देन 0. So when we put sigma is equals to 0 in equation, जो हमारे ऊपर इक्वेशन आ रही है, x of t is equals to e raised to sigma t into cos of omega t, ये sin of omega t, जिसमें हमारे पास e of पावर सिग्मा t क्या है, रियल वैल्यू सिग्नल है, और जो cos ओमेगा t प्लस j ओमेगा t जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है. तो यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू कंसीडर करेंगे जो कि हमारे पास रियल वैल्यू है. ठीक है. तो वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा इज लेस देन 0. सो व्हेन वी पुट सिग्मा इज इक्वल टू 0 एंड अबव इक्वेशन वी गेट x ऑफ t इज इक्वल टू e पावर 0t. सो जो हमारे पास रियल एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी इक्वल्स टू 1. हमारे पास जो है वो सिग्नल रिमेनिंग क्या बचेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एज वेल एज इमेजिनरी क्वांटिटी. जो कोसाइन जो है वो हमारे पास रियल टर्म है और साइन जो है इमेजिनरी टर्म है. इसको हमने जो e रेज़ टू j ओमेगा t था, अकॉर्डिंग टू आइलर्स थ्योरम हमने इसको क्या किया, ब्रेक किया है इन टू टर्म्स, रियल एज वेल एज इमेजिनरी टर्म. तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे सिर्फ जो है रियल वैल्यू को, जो कि cos ऑफ ओमेगा t है, तो ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल प्लॉट होगा. अगर हम इमेजिनरी सिग्नल को ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे या मैटलैब, तो हमारे पास साइन वेव जो होगा वो 2 डायमेंशनल सिग्नल होगा. लेकिन अगर दोनों को ही कंबाइनली हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास जो प्लॉट आएगा वो क्या आएगा, 3D प्लॉट. तो हम इसका प्रोग्राम प्लस इसकी जो प्लॉट है उसको भी हम देखेंगे किस तरीके से 2D और 2D प्लस 3D आपके पास जो x of t है वो 3D प्लॉट होगा. देन अगेन नेक्स्ट केस नंबर 2 इन विच वी पुट सिग्मा इज ग्रेटर देन 0. सो हमारे पास x of t इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा t इंटू j ओमेगा t. तो x of t हैज अ रियल value signal as well as a complex exponential signal which we have real as well as imaginary quantity. तो हम दोनों को ही डिवाइड करेंगे, रियल को अलग करेंगे, इमेजिनरी को अलग करेंगे. सो वी हैव रियल x of t is equals to e power sigma t into cos of omega t, and we have imaginary value of x of t which is e equals to sigma t dot sin of omega t. so अगर हम दोनों को अलग अलग प्लॉट करेंगे cos of
omega t into the exponential signal and sine omega t in the exponential real exponential signal. We have 2D plot and we combinely plot if x of t, so we get a 3D plot. तो यहाँ पर क्या होगा, हम जो भी होगा वो सेम ही होगा when we put sigma is less than 0, बस यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम पॉजिटिव सिग्मा को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा होगा उसको हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे नेगेटिव, बिकॉज सिग्मा हैज़ अ लेस देन 0 वैल्यू. सो फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो हम ने किया जब सिग्मा इक्वल टू 0. ये हमारा जो है वो प्रोग्राम है मैटलैब. तो ये आप लोग खुद भी घर पे एक्सरसाइज करोगे, मैं भी आप लोगों को करवाऊंगी कि किस तरीके से जनरेट होता है. तो जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास अब जो है वो आपके पास ये ऑप्शन है. ये हमने 3D प्लॉट जो है वो प्लॉट थ्रू मैटलैब कोडिंग हमने इसको प्लॉट किया है इन विच एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा टी जे साइन ऑफ ओमेगा टी व्हेन केस नंबर 1 सिग्मा इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे 3D प्लॉट है. आप इसी प्लॉट में जो है वो साइन वेव, अपना 2 डायमेंशनल साइन वेव भी प्लॉट कर सकते हैं और कोसाइन वेव भी प्लॉट कर सकते हैं. सो शोज टाइम एक्सिस. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये साइन वेव है और कोसाइन वेव का कम्बिनेशन है. तो ये हम जब मैटलैब में कोडिंग करेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से आपकी वेव्स जो है वो जनरेट हो रही हैं और चेंज हो रही हैं. ठीक है. दिस इज द 3D प्लॉट ऑफ our complex exponential signal when we consider sigma is equals to 0. और यहाँ पे है when we consider sigma is greater than 0. greater than 0 है, that means हमारा सिग्नल होगा उस ऑर्डर में होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो कि राइजिंग सिग्नल होगा. ठीक है. तो दिस इज अ मैटलैब कोड और इसका जो है यही जो एक्स ऑफ टी है इसको हमने प्लॉट किया थ्रू मैटलैब. ठीक है. तो हमारे पास ये 3D प्लॉट आ रहा है. हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करके हम इसको इस पोजीशन पे रखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से टाइम जो है वो बढ़ रहा है तो आपका सिग्नल भी जो है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है. तो ये आपका क्या है, 3D प्लॉट है. वहाँ पे आपका क्या था, जो हमने रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो हमने किया था उसमें हमारे पास एक सिग्नल था जो कि 3D प्लॉट था. इवन जो है जिसमें हमें पता चल रहा था हमारा राइजिंग सिग्नल है या डिक्रीजिंग डिकेइंग सिग्नल है. यहाँ पे आपका जो सिग्नल होगा एक्सपोनेंशियल वो आपका साइन वेव होगा, आइदर राइजिंग और आइदर डिकेइंग सिग्नल. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सिग्नल है 3D सिग्नल वो क्या है, राइजिंग है व्हेन वी अप्रोच टाइम टुवर्ड्स द इनफाइनाइट वैल्यू. ठीक है. दूसरा है इन केस नंबर 3 व्हेन वी पुट सिग्मा इज लेस देन 0. सो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो डिकेइंग आना चाहिए. हम देखेंगे इसको प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये 3D प्लॉट आ रहा है व्हेन सिग्मा इज लेस देन 0. जब हम इसको रोटेट करवाएंगे थ्रू मैटलैब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शुरू में इसकी वैल्यू ज़्यादा थी. जब हम टाइम जो है वो बढ़ाएंगे तो ये क्या हो रहा है कि आपका जो 3D प्लॉट है वो क्या हो रहा है, डिकेइंग के लेस देन जो है वो 0 की तरफ जा रहा है. ओके. उसके बाद यहाँ पे हम एक और हमने कोड लिखा है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं तीनों ही केसेस को. when sigma is equals to 0, when sigma is greater than 0 and when sigma is less than 0, which is decaying spiral, this is growing spiral. sigma is equals to 0 in stable oscillation जो कि सिंपल आपका जो है कॉम्बिनेशन है किसके, कोसाइन प्लस साइन, रियल प्लस इमेजिनरी, इवन प्लस और सिग्नल. ठीक है. तो इसको भी हम जब हम करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सिग्नल है जो कि सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 और सिग्मा हैव अ पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पे जब टाइम अप्रोच टुवर्ड्स द इनफाइनाइट वैल्यू तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है. और जब हम सिग्मा लेस देन 0 देंगे तो यहाँ पे जो सिग्नल है 3D सिग्नल वो क्या हो रहा है, आपका जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. ठीक है. उसके बाद ये अलग से प्लॉट है. यहाँ पे हमने y1 y2 साइन और कोसाइन को प्लॉट किया है. ठीक है. जिसमें जो है वो दोनों ही आपके सिग्नल हैं. जब हम जो है वो एक को सिग्मा को जो है वो ग्रेटर देन 0 करें और नेक्स्ट में क्या है, सिग्मा इज लेस देन 0. तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दूसरा जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ये रहा दूसरा. ठीक है. वो हमारा था इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. और डिक्रीजिंग दोनों ही आपका होगा रियल वैल्यू एज वेल एज एन इमेजिनरी वैल्यू.
तो जो रियल इमेजिनरी वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, साइन वेव, जो कि स्टार्ट हो रही है 0 से, और जो रियल टर्म है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 1 और गोइंग टूवर्ड्स दी 0, जब टाइम अप्रोच करेंगे हम टूवर्ड्स द